Good morning, dear student. Today we will start a new lesson of geography subject. What will be your name of the lesson? That I will declare afterwards. Before it, I will show you some pictures. You have to observe those pictures very carefully and you should tell me that what difference you are observing in the pictures which I will show you. Okay, ready then? Okay, then first picture observe please. Yes, see this first picture. Okay, that some people are there. I think two girls, two ladies are there, two gents are there. Now see where they are standing, what type of clothes they are wearing. Just observe in first picture. Observe it. Okay. Second picture we will see. See this second pictures. Here is also a picture of one family, two daughter, one small boy, husband and wife. A family is there. Again, see the difference in these pictures. What type of clothes they are wearing. Then we will observe third picture. See the picture. In this picture also, just some people are passing by the road, having umbrella in their hands. Okay. So what did you find among these three pictures? कुछ आइडेंटिफिकेशन, कुछ डिफरेंस आपको नज़र आया है? नहीं आया है? फिर से हम देखेंगे. सी इन फर्स्ट पिक्चर्स one family is just standing. What type of clothes they are wearing? That body is covered with full clothes, woolen clothes, but cap also on the head. Means they are protecting their body from from cold wind. Correct. The family is protecting their body from cold wind. Good. That's why they covered the body with full clothes like sweaters or jackets, we can say. In second picture, here the family is not having too much clothes to cover the body. Means here they will not be facing the cold wind. Means here they may facing the hot wind. That's why they are having not full clothes. See the person having half t-shirts. That two girls also, that small baby also having half clothes, not full clothes for covering the body. Means too much wind will not be there. Again in third picture, some people are just passing from the road using the umbrella. Maybe because of, yes, correct, because of rain. Means in rainy season when rainfall will be there, we are generally using an umbrella to protect us from the rainfall. Means here we are observing that according to the season in first picture what we saw, it may be winter season, it may be cold winds, and generally we know in winter seasons we cover our body with full clothes. That is winter season. Second, because of summer season, just warm hotness is there, so we not wear full clothes to our body. Half t-shirt, that bermuda, half pant, generally we are using. So this is because of the climate change. We are observing that three seasons are there mainly. That is winter, summer and rainy season in every country. So generally we are using different clothes in different seasons. In third picture also, when rainfall is there, we are using an umbrella, and we are not using too much half clothes. Generally we are also using full clothes for rainy season also to protect us from cold wind, ठंड हवा से बचाव के लिए. So
with these three pictures we will understand that there are some season, there are some month in the year where we are changing our cloth pattern. So that is only because of what? Climate. That is because of climates. Means because of different climate in different season, in different month, we are using different clothes. So dear student, what will be our lesson today? Yes, correct. Today we will understand the lesson that is climate. We will understand the lesson climate. What is mean by climate? Climate क्या होता है? How it create, how it affect the lifestyle, the cloth pattern, the food pattern, the housing pattern, that we will understand in today's lesson, that is climate. So before going to understand the detailed informations of the lesson, just you should understand what is mean by climate. Climate का मतलब क्या होता है वो आपको समझना चाहिए. Climate means the weather conditions prevailing in an area in general or over a long period. Climate क्या होता है? कुछ एरिया में जो वेदर कंडीशंस होता है फॉर कुछ समय के लिए या ज़्यादा समय के लिए, उसको क्लाइमेट बोला जाता है. जैसे कि हमने देखा इन इंडिया 3 month वी आर फेसिंग विंटर, 3 month वी आर फेसिंग summer, and then next month we are facing that is rainy season. So today this is our lesson that we will understand climate. Before going to understand the lesson line to line, first we will understand the important concept, the new words of the lesson climate. पहले important words का हम मीनिंग देखेंगे आज के इस लेसन में. First word, that is climate. Now what is meant by climate? The weather conditions prevailing in an area in general और ओवर अ लॉन्ग पीरियड. मतलब वेदर का कंडीशन किसी एरिया में कुछ समय के लिए या ज़्यादा समय के लिए जो होता है उसको क्लाइमेट बोला जाता है. जैसे यू कैन ऑब्जर्व इन अ डे, समटाइम्स इन द मॉर्निंग द एटमॉस्फेयर मे बी क्लाउडी, बादल हो सकते हैं आसमान में, बट वही 2-3 घंटे के बाद क्लाउड चले भी जा सकते हैं. समटाइम्स इन द इवनिंग वी कैन फेस a cold wind, or sometimes in afternoon we can face hot wind. तो we can't say that सुबह में, दोपहर में या इवनिंग में या नाइट में what type of air will blow, whether it will be hot, it will be cold, that we can't see. तो it is the effect of the climate. तो ये क्लाइमेट का ही परिणाम होता है. नेक्स्ट वर्ड, वेदर. The state of the atmosphere at a particular place and time, that is heat, cloudiness, dryness, sunshine, wind, rain, etc. तो किसी एरिया में कुछ समय के लिए हीट का होना, बादल का होना, ड्राइनेस का होना, सनशाइन का होना, विंड का होना, रेन का होना, उसको वेदर बोलते हैं. तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द वेदर एंड क्लाइमेट. जनरली क्लाइमेट क्या होता है? सी, क्लाइमेट इज अ वेदर कंडीशन दैट इज स्टडीड फॉर द पीरियड ऑफ 30 ईयर. किसी एरिया का, किसी स्टेट का, किसी कंट्री का, किसी कॉन्टिनेंट का अगर स्टडी हमने 30 साल तक किया है वहाँ का वेदरिक कंडीशन का, तो हम बता सकते हैं कि द क्लाइमेट ऑफ दिस महाराष्ट्र स्टेट और द गुजरात स्टेट और इंडिया इज दिस टाइप. बट व्हाट इज मीन बाय वेदर? तो वेदर जो होता है वो पर्टिकुलर डे का होता है. जैसे द वेदर ऑफ गुजरात और मोरबी, in the morning it may be different, in the afternoon it may be different, and in the evening or at night it may be different. So weather is a study of heat, cloudiness, dryness, sunshine of an area for a particular time. बट क्लाइमेट जो होता है उस एरिया का 30 साल तक स्टडी होता है कि कौन से महीने में, कौन से सीजन में कितना बरसात वहाँ होता है, कितना ठंड वहाँ होता है, कितना समर वहाँ होता है, कितना विंटर वहाँ होता है, कितना रेनी सीजन वहाँ होता है. फिर उस
एरिया का 30 साल तक स्टडी करने के बाद वी कैन डिक्लेयर दैट द क्लाइमेट ऑफ मोरबी, द क्लाइमेट ऑफ गुजरात, द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज दिस टाइप। और वेदर जो होता है इट मे बी डिफरेंट इन द मॉर्निंग, आफ्टरनून और नाइट। तो क्वेश्चन कैन कम व्हाट इज मीन बाय क्लाइमेट और व्हाट इज मीन बाय वेदर, तो आपने 1 मार्क के लिए ऐसा लिखना है। देन नेक्स्ट वर्ड है प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन मतलब बरसात का आना, पानी का आना, उसको बोलते हैं प्रेसिपिटेशन। द एक्शन or process of precipitating a substance from a solution following products of condensation in the atmosphere as rain, snow or hail। मतलब बरसात के रूप में, बर्फ के रूप में या हेल के रूप में जो भी सब्सटेंस जमीन पर गिरता है उसको प्रेसिपिटेशन मतलब बरसात बोला जाता है। नेक्स्ट वर्ड है मॉनसून, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है मॉनसून। अ पीरियोडिक विंड especially in the Indian Ocean and Southern Asia commonly marked by heavy rains। तो एक हवा का पीरियड होता है विंड का जब इंडियन ओशन के ऊपर सदर्न एशिया में कॉमनली हेवी रेन के साथ जब एंट्री लेता है तो उसको मॉनसून बोला जाता है। नेक्स्ट वर्ड है एल्टीट्यूड। अब एल्टीट्यूड का मतलब क्या है? The height of an object or point in relation to sea level और ground level। मतलब कोई अगर प्लेस, कोई सिटी, कोई ठिकान अगर ग्राउंड लेवल से या समुद्र सपाटी से कितनी दूरी पर है वो नापने का एक तरीका जो होता है उसको एल्टीट्यूड बोलते हैं। मतलब ऊंचाई किसी चीज़ की फ्रॉम द सरफेस ऑफ द लैंड और फ्रॉम द सी लेवल। देन है लैटिट्यूड। व्हाट इज मीन बाय लैटिट्यूड? द एंगुलर डिस्टेंस ऑफ अ प्लेस नॉर्थ और साउथ ऑफ द अर्थ इक्वेटर। मतलब आपको पता होगा व्हाट इज मीन बाय लैटिट्यूड, आपको पता होगा फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ इमेजिनरी लाइन इज पास दैट इज नोन एज इक्वेटर। तो इक्वेटर के ऊपर 90 डिग्रीज के लैटिट्यूड होते हैं और इक्वेटर के नीचे सदर्न पार्ट में 90 डिग्रीज के लैटिट्यूड होते हैं। 90 + 90 180 और एक इक्वेटर 181। देयर आर 181 लैटिट्यूड्स ऑन द earth। So these are the imaginary lines। Once again we will see latitude, the angular distance of a place north or south of the earth equator or of the equator of a celestial object usually expressed in degrees and minutes। तो एक जो डिस्टेंस होता है उनका डिग्रीज और मिनट्स में नापा जाता है। नेक्स्ट है ओशन करंट। ओशन करंट इज एनी मोर और लेस permanent or continuous directed movement of ocean water that flows in one of the earth ocean। मतलब अर्थ के ओशन में जब पानी का प्रवाह पास होता है तो उसको ओशन करंट बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है रिलीफ फीचर्स। नाउ व्हाट इज मीन बाय रिलीफ फीचर्स? Relief features are those features which are related to landscape of those areas, mountains, altitude, valleys, types of lands, heights of mountains। तो रिलीफ फीचर्स उनको बोला जाता है मतलब नदी का होना, पहाड़ों का होना, वैलीज का होना, हाइटेड लैंड का होना, उसको बोला जाता है रिलीफ फीचर। Next word we will see cyclonic। cyclonic disturbances। अब ये क्या होता है that we will see। cyclonic disturbances, a western disturbance is an extra tropical storm originating in the Mediterranean region that brings sudden winter rain to the northwestern parts of the Indian subcontinent। मतलब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस इज एन एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल स्टॉर्म, एक तूफान ओरिजिनेट होता है इन द मेडिटेरियन रीजन, मेडिटेरियन एरियाज में, दैट ब्रिंग्स सडन विंटर रेन, जो विंटर में बरसात लाता है,
टू द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स, उत्तर पश्चिम भाग में ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट, जो इंडिया का सब कॉन्टिनेंट वहाँ पर। नेक्स्ट वर्ड है ट्रॉपिकल साइक्लोन। ट्रॉपिकल साइक्लोन बोले तो क्या, अ लोकलाइज्ड वेरी इंटेंस लो प्रेशर विंड सिस्टम forming over tropical oceans and with winds of hurricane force। तो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स मतलब जो तूफान बनते हैं, दैट लोकलाइज्ड वेरी इंटेंस लो प्रेशर विंड सिस्टम, हवा का दबाव कम करते हैं, फॉर्मिंग ओवर ट्रॉपिकल ओशन मतलब ट्रॉपिकल समुद्र के ऊपर, महासागर के ऊपर, एंड विथ विंड्स ऑफ हरिकेन फोर्स, एक नया फोर्स तैयार करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है सब कॉन्टिनेंट। व्हाट इज मीन बाय सब कॉन्टिनेंट, अ लार्ज रिलेटिवली सेल्फ कंटेन्ड लैंडमास फॉर्मिंग अ सब डिवीजन ऑफ अ कॉन्टिनेंट। तो सब कॉन्टिनेंट क्या होता है, एक बड़ा लार्ज रिलेटिवली सेल्फ कंटेन्ड लैंडमास, एक स्वतंत्र लैंडमास होता है, फॉर्मिंग अ सब डिवीजन ऑफ अ कॉन्टिनेंट, जो ऐसा लगता है किसी कॉन्टिनेंट का, किसी खंड का एक सेपरेट पार्ट हो। नेक्स्ट वर्ड है जेट स्ट्रीम। जेट इज रिलेटेड टू द एरोप्लेन। जेट स्ट्रीम अब क्या है, आर फास्ट फ्लोइंग नैरो मेंडरिंग, मेंडरिंग मतलब जिगजैग, तिरछी, एयर करंट्स फाउंड इन द एटमॉस्फेयर ऑफ सम प्लैनेट्स इंक्लूडिंग अर्थ। तो ये थोड़ी फास्ट बहने वाली नैरो मेंडरिंग एयर करंट्स होती है जो फाउंड होती है एटमॉस्फेयर में, एटमॉस्फेयर ऑफ सम प्लैनेट्स इंक्लूडिंग अर्थ, अर्थ के साथ। नेक्स्ट वर्ड है इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन, that is ITCZ. Question can come, what is the long form of ITCZ? So you have to explain, that is intertropical convergence zone is known as ITCZ, known by sailors as the doldrums, is the area encircling the earth near the equator। तो एक सेलर मतलब जो भी प्रवास करते हैं, जर्नी करते हैं बाय द सी, शिप के जरिए, इज द एरिया एनसर्कलिंग द अर्थ, जो अर्थ को सर्कल करता है इक्वेटर के पास, वेयर द नॉर्थ ईस्ट एंड साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स कन्वर्ज, जहाँ उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्वी विंड्स एकत्रित आते हैं। नेक्स्ट है सदर्न ओसिलेशन। सदर्न ओसिलेशन, the cyclic variations of atmospheric pressure at sea level, sea level पर जो atmospheric pressure का variations होता है, बदलाव होता है, between the eastern and western regions of the southern Pacific Ocean as a result of the periodic cooling and warming of surface water known as El Nino। मतलब पैसिफिक ओशन का जो वाटर होता है, जब वो कूल होता है और वार्म होता है बिकॉज ऑफ सरफेस वाटर, जिसको एल नीनो बोला जाता है। नेक्स्ट वर्ड है मैंगो शॉर्स। अब ये मैंगो शॉर्स क्या है, मैंगो शॉर्स और मैंगो रेन्स इज अ कोल्यूकल टर्म टू डिस्क्राइब द अकरेंस ऑफ प्री मॉनसून रेनफॉल। मतलब मॉनसून आने से पहले जो बरसात आता है, मतलब समर में ही, समर के एंडिंग में जो बरसात आता है मानसून आने के पहले, उसको बोलते हैं मैंगो शॉर। तो दिस रेन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप जब लेसन पढ़ोगे तो यू विल अंडरस्टैंड दैट बिकॉज ऑफ दिस मैंगो शोर, बिकॉज ऑफ दिस प्री मानसून रेनफॉल, व्हाट हैपन, द मैंगोज आर गोइंग टू राइप, पकते हैं, आम जो है वो पकते हैं। नेक्स्ट लास्ट वर्ड वी विल अंडरस्टैंड रिट्रीटिंग मानसून। रिट्रीटिंग मानसून मतलब रिटर्न जाने वाला मानसून। दिस इज नोन एज द नॉर्थ ईस्ट मानसून और रिट्रीटिंग मानसून वाइल ट्रैवलिंग टूवर्ड्स द इंडियन ओशन। जब इंडियन ओशन की तरफ ये ट्रैवल करता है, द ड्राई कोल्ड विंड पिक्स अप सम मॉइस्चर फ्रॉम द बे ऑफ बंगाल एंड पोर्स इट ओवर अ पेनिनसुलर इंडिया एंड पार्ट्स ऑफ श्रीलंका।
तब वो जो ड्राई विंड्स होते हैं वो पिक करते हैं मॉइस्चर, नमी बे ऑफ बंगाल से, एंड पोर्स इट, और डाल देते हैं ओवर पेनिसुलर इंडिया एंड पार्ट्स ऑफ श्रीलंका. So dear student, this was all about the new words of the lesson climate. Now dear student, we will start our lesson line to line. In the last two chapters, you have read about the landforms and the drainage of our country. जो पहले इस टेक्स्ट बुक के जो लेसन थे उनसे पहले लेसन में हमने लैंडफॉर्म्स ऑफ इंडिया और ड्रेनेज ऑफ आवर कंट्री, मतलब लैंडफॉर्म्स कैसे है इंडिया के, और जो नदी जब बहती है तो कैसे ड्रेनेज पैटर्न तैयार करती है वो हमने देखा है. These are the two of the three basic elements that one learns about the natural environment of an area. तो ये जो लैंडफॉर्म्स हमने देखे हैं, बाद में जो ड्रेनेज पैटर्न हमने देखे हैं, तो ये सबसे बेस्ट तरीका है कि टू अंडरस्टैंड द नेचुरल एनवायरनमेंट ऑफ एन एरिया. नैसर्गिक जो भी पर्यावरण होता है किसी एरिया का, उसको समझने का एक अच्छा तरीका होता है. In this chapter, you will learn about the third, that is the atmospheric condition that prevail over our country. एक वर्ड हमको नया मिला है, that is prevail. prevail का मतलब होता है prove more powerful or superior. prove more powerful or superior means आज हम तीन important factor नेचुरल एनवायरनमेंट समझने के लिए जो इम्पोर्टेंट होते हैं उसका थर्ड पार्ट को समझेंगे. पहले तो हमने ऑलरेडी दो लेसन में समझे हैं, एक है लैंडफॉर्म्स हमने समझा है, दूसरा हमने ड्रेनेज ऑफ आवर कंट्री हमने समझा है, और आज हम समझेंगे एटमॉस्फेरिक कंडीशन दैट प्रिवेल ओवर आवर कंट्री. मतलब हमारे कंट्री का जो एटमॉस्फेरिक कंडीशंस होता है, मतलब सम मंथ वी विल experience winter, मतलब cold wind, some month we will experience hot wind, and some month we will get precipitation, means rainfall. Why do we wear woolen in December, or why it is hot and uncomfortable in the month of May? तो वाई डू वी वियर वुलन्स इन दिसंबर. जब ठंड होती है दिसंबर मंथ में, ज़्यादा ठंड होती है, तो हम वुलन क्लोथ क्यों पहनते हैं. हमने देखा है जब लेसन चालू किया था तो मैंने बताया था आपको, व्हेन विंटर सीजन इज देयर, हाउ द फैमिली इज वेयरिंग द फुल क्लोथ, जैकेट्स और स्वेटर्स टू कवर द बॉडी फ्रॉम द कोल्ड विंड. एंड व्हाई इट इज़ हॉट एंड अनकम्फर्टेबल इन द मंथ ऑफ मई. तो मई मंथ में क्यों हमको गर्म लगता है. व्हाई वी सिट ऑन बरमुडा एंड विथ दैट हाफ टी शर्ट और बनियान, क्यों हम कम कपड़े पहनते हैं. एंड व्हाई इट रेन्स इन जून जुलाई, और जून और जुलाई मंथ में क्यों बरसात आती है. तो एवरी ईयर हम एक्सपीरियंस करते हैं, मीन्स जनरली जून जुलाई अगस्त सितंबर तक मतलब बरसात आती है. देन अगेन फ्रॉम अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी कोल्ड विंड बहते हैं, ठंड बहती है, विंटर सीजन आता है. देन अगेन फ्रॉम द मंथ ऑफ एंडिंग ऑफ फेब्रुअरी मार्च अप्रैल मई, देन अगेन हॉट नाइट समर इज देयर. द आंसर्स टू ऑल दीज क्वेश्चंस कैन बी फाउंड आउट बाय स्टडिंग अबाउट द क्लाइमेट ऑफ इंडिया. तो ये क्वेश्चन का, ये सवालों का जवाब हमको तभी मिलेगा देन व्हेन वी विल अंडरस्टैंड द लेसन क्लाइमेट. तो in this lesson climate you will get how the cold wind, how the hot wind, and how because of this high pressure, low pressure and this wind, how the rainfall is going to come in India. उसके बारे में हम जानकारी देखने वाले हैं. Climate refers to the sum total of weather conditions and variations over a large area
फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम मोर देन 30 ईयर्स। मैंने पहले ही आपको बताया था व्हाट इज मीन बाय क्लाइमेट। तो दिस इज द आंसर ऑफ 1 मार्क क्वेश्चन, व्हाट इज मीन बाय क्लाइमेट। 1 मार्क के लिए क्वेश्चन आ सकता है कि क्लाइमेट बोले तो क्या, तो उसका आंसर क्या है, क्लाइमेट रेफर्स टू द सम टोटल ऑफ वेदर कंडीशन। क्लाइमेट बोले तो सम टोटल होता है वेदर कंडीशन का। अब वेदर कंडीशन क्या होता है, सुबह क्लाउड का होना, दोपहर में हॉटनेस का आना, इवनिंग में ठंड हवा बहना, इसका जो सम टोटल होता है किसी एरिया का, एंड वेरिएशंस ओवर अ लार्ज एरिया फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम मोर देन 30 ईयर्स। फॉर एग्जाम्पल मोरबी सिटी का, अगर हमने मोरबी सिटी में विंटर सीजन में, मतलब फॉर एग्जाम्पल मोरबी सिटी में फ्रॉम द मंथ ऑफ जून टू सितंबर बरसात कितना होता है, ऐसा 30 साल तक स्टडी करेंगे। बाद में मोरबी सिटी में फ्रॉम द अक्टूबर टू द फरवरी एंडिंग कितना ठंड आता है, बाद में फ्रॉम द मार्च अप्रैल मई ये महीनों में कितना टेम्परेचर आता है। ऐसा अगर मोरबी सिटी का हर सीजन का हमने 30 ईयर्स तक स्टडी किया, देन वी कैन डिक्लेयर दैट द क्लाइमेट ऑफ मोरबी इज हॉट और द क्लाइमेट ऑफ मोरबी इज कोल्ड, ऐसा हम डिक्लेयर करते हैं। तो क्लाइमेट का स्टडी करने के लिए पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट हो, पर्टिकुलर तालुका हो, तहसील प्लेस हो, या फिर कंट्री हो या स्टेट हो, उसका 30 साल तक वहाँ के हवा का, हॉटनेस का, विंड का, सीजन का स्टडी करना पड़ता है, तब जाके पता लगता है कि उसका क्लाइमेट कैसे है। वेदर रेफर्स टू द स्टेट ऑफ द एटमॉस्फेयर ओवर एन एरिया एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। वेदर क्या होता है, किसी भी एरिया का, किसी भी ठिकान का, प्लेस का, सुबह का, दोपहर का या रात का, मतलब दिन में क्या चेंजेस होते हैं, उसका स्टडी जो होता है वह होता है वेदर। द एलिमेंट्स ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट आर द सेम, दैट इज टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, विंड, ह्यूमिडिटी एंड प्रिसिपिटेशन। तो वेदर और क्लाइमेट के जो भी एलिमेंट्स होते हैं वो सेम होते हैं। क्वेश्चन कैन कम इन एग्जामिनेशन फॉर 1 मार्क, व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ वेदर और व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ क्लाइमेट। तो वेदर और क्लाइमेट दोनों के एलिमेंट सेम ही होते हैं। पहले तो आपको डिफरेंस समझना चाहिए कि क्लाइमेट जो होता है दैट इज स्टडी ऑफ पर्टिकुलर एरिया फॉर द पीरियड ऑफ 30 ईयर। 30 साल तक हर सीजन में बरसात कितना होता है, ठंडी कितना होता है, टेम्परेचर कितना होता है, उसका स्टडी बोले तो क्लाइमेट ऑफ दैट एरिया। और वेदर बोले तो दोपहर में क्या चेंजेस है, दोपहर मतलब सुबह में क्या है और रात में क्या है, दैट इज द वेदर ऑफ दैट एरिया। तो वेदर में बी चेंजिंग इन द मॉर्निंग, आफ्टरनून और नाइट, बट द क्लाइमेट विल बी सेम बिकॉज दैट विल बी द स्टडी ऑफ 30 ईयर्स। The elements of weather and climate are the same, that is temperature, atmospheric pressure, wind, humidity and precipitation। ये टिक मार कर लो आप, ये बहुत ही important point है। You may have observed that the weather conditions fluctuate। fluctuate मतलब कम ज़्यादा होना, fluctuate very often even within a day। तो वेदर में क्या होता है, सीजन दिन का जो वेदर होता है वो फ्लक्चुएट होता है, कम ज़्यादा होता है। मतलब सुबह में क्लाउड होंगे तो दोपहर में क्लाउड चले जाएंगे, या सुबह में ठंड होंगी तो दोपहर में गर्मी आ जाएंगी, या फिर से रात में ठंडी आ जाएंगी। बट देयर इज सम कॉमन पैटर्न ओवर अ फ्यू वीक्स और मंथ, दैट इज डेज और कूल और हॉट, विंडी और काम, क्लाउडी और ब्राइट एंड वेट और ड्राई। बट देयर इज सम कॉमन पैटर्न, लेकिन कुछ पैटर्न कॉमन होते हैं, कुछ वीक के लिए, कुछ मंथ के लिए, बाद में वो बदलते रहता है। On the basis of the generalized monthly atmospheric condition, the year is divided into season such as winter, summer और rainy season। तो जो ये जनरलाइज मंथली एटमॉस्फेरिक कंडीशन होता है, हर महीने का जो इंडिया का अपना एटमॉस्फेरिक कंडीशन होता है, मतलब तापमान बढ़ना, ठंडी आना, बरसात आना, द ईयर इज डिवाइडेड इनटू सीजन। जो हमारा साल होता है वो सीजन में डिवाइड किया है, सच एज विंटर, समर और रेनी सीजन। आपको भी पता है कि कौन से महीने से बरसात आता है, कौन से महीने से समर आता है और कौन से महीने से विंटर आता है। तो आई थिंक फ्रॉम द मंथ ऑफ अक्टूबर एंडिंग द विंटर इज गोइंग टू स्टार्ट।
तो अभी विंटर कब तक चलेगा? जनवरी फरवरी के फर्स्ट वीक तक, बाद में फरवरी के एंडिंग से फिर समर चालू होगा। The world is divided into a number of climatic regions। अब जो पूरा विश्व है जहाँ पर मोर देन 190 200 के ऊपर कंट्रीज होते हैं पूरे विश्व में, तो वो जो वर्ल्ड है इट इज़ डिवाइडेड ऑन द नंबर ऑफ क्लाइमेटिक रीजन्स। डू यू नो व्हाट टाइप ऑफ क्लाइमेट इंडिया हैज़ एंड व्हाई इट इज़ सो? क्या आपको पता है इंडिया का क्लाइमेट किस प्रकार का है और वो क्यों है? वी विल लर्न अबाउट इट इन दिस चैप्टर। तो इंडिया का क्लाइमेट कौन से प्रकार का है, कैसा है, वह हम इस लेसन में समझने वाले हैं। द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज डिस्क्राइब्ड एज द मॉनसून टाइप। क्वेश्चन कैन कम, व्हाट टाइप ऑफ क्लाइमेट इंडिया इज हैविंग? तो आंसर विल बी मॉनसून टाइप। 1 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है। इन एशिया दिस टाइप ऑफ क्लाइमेट इज फाउंड मेनली इन द साउथ एंड द साउथ ईस्ट। आपको पता है एशिया इज अ कॉन्टिनेंट ऑफ इंडिया। हमारा जो भी कंट्री है इंडिया, वो कौन से कॉन्टिनेंट में आता है? एशिया में आता है। तो इन एशिया दिस टाइप ऑफ क्लाइमेट इज फाउंड मेनली इन द साउथ एंड द साउथ ईस्ट। तो मॉनसून टाइप का जो क्लाइमेट होता है वो एशिया कॉन्टिनेंट में दक्षिण दिशा में और दक्षिण पूर्व दिशा में पाया जाता है। डिस्पाइट एन ओवरऑल यूनिटी इन द जनरल पैटर्न, there are perceptible regional variation in climatic conditions within the country। बाद में थोड़ा कंट्री में रीजन वाइज थोड़ा डिफरेंस मिलेगा हमको, सेम नहीं आएगा वो। Let us take 2 important elements, temperature and precipitation, and examine how they vary from place to place and season to season। तो इम्पोर्टेंट बात क्या है? लेट अस टेक 2 इम्पोर्टेंट एलिमेंट। 2 इम्पोर्टेंट घटक है। पहला है टेम्परेचर, तापमान, और प्रिसिपिटेशन, बरसात। अब ये क्या होता है? स्टेट वाइज इनमें डिफरेंस आएगा इंडिया में। इन समर द मर्क्यूरी ओकेजनली टचेस 50 डिग्री सेल्सियस इन सम पार्ट्स ऑफ राजस्थान डेजर्ट, whereas it may be around 20 डिग्री सेल्सियस इन पहलगाम इन जम्मू एंड कश्मीर। अब देखो डिफरेंस, मतलब समर सीजन में राजस्थान का डेजर्ट एरिया का टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस तक जाता है, वही पहलगाम जो प्लेस है वहाँ पर 20 डिग्री सेल्सियस जम्मू एंड कश्मीर में आता है। मतलब पहलगाम में 20 डिग्री सेल्सियस और राजस्थान में 50 डिग्री सेल्सियस, कहीं धूप कहीं छाँव, मतलब कहीं टेम्परेचर ज़्यादा कहीं टेम्परेचर कम। वैसे ही विंटर का होता है। जम्मू एंड कश्मीर नॉर्दर्न पार्ट में जितना ठंड होता है उतना ठंड अपने गुजरात और महाराष्ट्र में नहीं होता है, और राजस्थान में जितना टेम्परेचर ज़्यादा होता है उतना टेम्परेचर गुजरात और महाराष्ट्र में नहीं होता है। राजस्थान से थोड़ा कम गुजरात में हो सकता है, लेकिन गुजरात से और थोड़ा कम महाराष्ट्र में होता है, लाइक दिस। ऑन अ विंटर नाइट टेम्परेचर एट द्रास इन जम्मू एंड कश्मीर मे बी एज लो एज -45 डिग्री सेल्सियस। देखो और नया चमत्कार, विंटर के रात जो द्रास एरिया है जम्मू एंड कश्मीर का, वहाँ 45 डिग्री सेल्सियस माइनस इतना टेम्परेचर कम होता है। Thiruvananthapuram on the other hand may have a temperature of 20 डिग्री सेल्सियस। तो तिरुवनंतपुरम में 22 डिग्री सेल्सियस तापमान है। डू यू नो, थोड़ा इंफॉर्मेशन यहाँ दिया है। इन सर्टन प्लेसेस देयर इज अ वाइड डिफरेंस बिटवीन डे एंड नाइट टेम्परेचर। कोई जगह पर दिन के और रात के तापमान में भी डिफरेंस होता है। इन द थर्ड डेजर्ट द डे टेम्परेचर मे राइज टू 50 डिग्री। थर्ड जो डेजर्ट एरिया वहाँ 50 डिग्री सेल्सियस का तापमान दिन में होता है, एंड ड्रॉप डाउन टू नियर 15 डिग्री द सेम नाइट। और उसी रात थर्ड एरिया में रात का तापमान 15 डिग्री सेल्सियस होता है। ऑन द अदर हैंड देयर इज हार्डली एनी डिफरेंस इन डे एंड नाइट टेम्परेचर्स इन द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स और इन केरला।
तो केरला में और अंडमान और वहाँ ये थोड़ा डिफरेंस कम दिखता है। Let us now look at precipitation। अब हम देखेंगे, पहले हमने देखा टेम्परेचर का, अब हम देखेंगे प्रिसिपिटेशन। प्रिसिपिटेशन का मतलब होता है बरसात का आना। देयर आर वेरिएशन नॉट ओनली इन द फॉर्म एंड टाइप्स ऑफ प्रिसिपिटेशन बट ऑल्सो इन इट्स अमाउंट एंड द सीजनल डिस्ट्रीब्यूशन। तो इंडिया में जो बरसात होती है वो सेम प्रकार की बरसात सभी राज्यों में नहीं होती है। जैसे आपने देखा होगा ईस्टर्न इंडिया में, नॉर्दर्न इंडिया में ज़्यादा बरसात होती है तो नदियों को बाढ़ ज़्यादा होती है, स्पेशली अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, इस राज्यों में। वही कुछ कुछ एरिया में बाढ़ कम होती है। While precipitation is mostly in the form of snowfall in the upper parts of Himalayas, अब नॉर्दर्न पार्ट में जम्मू एंड कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में, हरियाणा में जो बरसात होती है वो स्नोफॉल के रूप में होती है। इट रेन्स ओवर द रेस्ट ऑफ द कंट्री, और बाकी के एरिया में बरसात होती है। गुजरात, महाराष्ट्र बरसात होती है, ना कि स्नोफॉल होता है। हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, जम्मू एंड कश्मीर, वहाँ स्नोफॉल होता है ज़्यादा। The annual precipitation varies from over 400 cm in Meghalaya to less than 10 cm in Ladakh and western Rajasthan। तो देखो वेरिएशंस ऑफ रेनफॉल इन इंडिया, मतलब मेघालय में 400 सेंटीमीटर से ज़्यादा बरसात होती है साल की, वही 10 सेंटीमीटर लद्दाख में होती है या वेस्टर्न राजस्थान में होती है। कहीं धूप कहीं छाँव, कहीं पर 400 सेंटीमीटर से ऊपर रेनफॉल तो कहीं पर 10 सेंटीमीटर। लद्दाख एंड वेस्टर्न राजस्थान इज द एरिया। मोस्ट पार्ट्स ऑफ द कंट्री रिसीव रेनफॉल फ्रॉम जून टू सितंबर। पूरा इंडिया में जो बरसात होती है वो जून से सितंबर के मंथ में होती है। बट सम पार्ट्स लाइक तमिलनाडु, कुछ पार्ट जो होते हैं लाइक तमिलनाडु, but some parts like the Tamil Nadu coast gets a large portion of its rain during October and November। तो जो पार्ट्स होते हैं तमिलनाडु के कोस्ट का, गेट्स अ लार्ज प्रोपोर्शंस ऑफ इट्स रेन, ज़्यादा मात्रा में बरसात होती है ड्यूरिंग द अक्टूबर एंड नवंबर। So dear student, this was all about our first part of the lesson climate. Remaining part of these lessons we will continue in next part. Till then, goodbye. Have a nice day.